Okay, so let us start our today's class. Good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Today we will start unit 2. I think we have revised unit first in the last week. In this week we will revise the unit 2. And the unit 2, just wait. In unit 2, okay. So now come to the unit 2. Okay, so we will start object-oriented programming in class and object. So I think everybody know about the class and object. Am I right or wrong? I think everybody know about the class and object. What is the class and what is the object? Anyone tell me about the object? What is the object? Yes. Anyone tell me about the object? What is the object? Yes. So, it is a basic runtime entities in OOP system. Okay, it is a runtime entities, which is basically anything like a table, pen, or anything which you want. Object can be anything, or we can say it is a runtime entity. Now, what is the class? Collection of objects Collections of object and of similar types. and collections of object Function. or function. It is the collections of function that is called the method and the variable. Class is the collection of object, methods, and the variable. So basic and simple definition of the class and object. Class is the collections of method and variables, and object is a runtime entity. So this is a basic concept of the class and object. The content of the slide. Yes, Ashish. मेथड और फंक्शन अलग होता है क्या? नो, मेथड एंड फंक्शंस अलग नहीं है. मेथड और फंक्शन एक ही चीज होते हैं, ठीक है ना. मेथड और फंक्शन कि आपने क्या फंक्शन डिफाइन किया, लाइक गेट डेटा, पुट डेटा एंड व्हाटएवर. तो दीज आर द फंक्शन. और भी हम जनरली जब थ्योरेटिकल टर्म में आते हैं तो उसको मेथड बोलते हैं. सो देयर इज नो डिफरेंस है ना, मेथड एंड फंक्शन. जी. Okay. So the content of the slide is the implementation of class and object in C++, member access specifier, object as a data type, constructor and destructor. So most of the students know about the class and object. So what is the class and object? C++ is an object-oriented programming language. I think everybody knows. Everything in C++ associated with class and object along with its attribute and the method. For example, in real life, a car is an object and the car has number of attributes such as the weight, color, and method is what? Drive, brake. These are the method which is executing, driving. We are driving a car. And what is the weight of or what is the color of the car? These are the attributes. The name of the company is also an attribute of the company, but the functionality is the driving and braking is the method. These two functioning we are performing on a car class.
So I think it should be clear what is the class and what work performed by the class. The attribute and method are basically variable and the function that belong to the class. So these attributes का मतलब क्या है? That is the variable and the function that belong to the class. These are the often referred to as the class member. Class is a user defined data type. Now this is the important. We have two data type in C or C++. One is the built-in data type and another is the user-defined data type. So class is a user-defined data type. User खुद define करता है कि उसको किस type की class उसको चाहिए है. That we can use in our program and it work as an object constructor or blueprint for creating object. और object की help से हम उस क्लास की मेथड और वेरिएबल को यूज करते हैं और उनकी फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हैं. So I think it is clear what is the class. Class is a user defined data type which is the collections of attribute and method. Basically attribute and methods are just a variable and functions of the class. Object is what? Object is the real time entities. And if we want to access variable and functions of the class, then we need to create an object. Is that clear? Now look at this example. If we are creating a class of time, then this is the structure. This is the structure or syntax to create a class. This is the class time. कैसे create करेंगे आप एक class को? तो time नाम की है. This is the basically function of the class. This is the function of the class. This is the print. This is also a function. This is the also a function. So there are four functions of a class time, and we have declared three variables in the class time. तो ये इस तरीके से आप फंक्शन और क्लास को डिक्लेयर करते हैं हम एक क्लास के अंदर. नाउ ऑब्जेक्ट एग्जांपल. अब अगर मेरे को इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो कैसे बनाते हैं? नाउ लुक एट दिस. दिस इज द टाइम एंड जैसे हम एक डेटा टाइप डिफाइन करते हैं ना, लाइक दिस इंटीजर और, तो उसी तरीके से ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है तो हमें क्लास का नाम लेना पड़ेगा और उसके बाद हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा? एक वेरिएबल दैट विल बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. So this is a object of the class. Now array of time, this is also a object of the class. This is also object of the class. So these are the object of the class. Different types of object of a class we can create. Look at this. Object of the time. Array of time object. एक array को हमने object की तरह डिफाइन की, डिक्लेयर किया. यहाँ पर पॉइंटर टू अ टाइम ऑब्जेक्ट. टाइम ऑब्जेक्ट में एक पॉइंटर, हमने पॉइंटर को भी ले लिया. रेफरेंस टू अ टाइम ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट हम किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं एक क्लास का. एनीथिंग, अभी वैसे ही बोला है, ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग. क्लास एंड ऑब्जेक्ट एग्जांपल. नाउ लुक एट दिस. दिस इज अ बेसिक एग्जांपल क्लास एंड ऑब्जेक्ट का. अगर मैं आपको रन करके दिखाता जाऊं तो हम समझते जाएंगे कि बेसिकली लुक एट दिस वंस अगेन, कि हम एक एक प्रोग्राम को रन करेंगे और उनको चेक करेंगे कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट हमारा क्या है. तो लुक एट दिस. यस, आई थिंक इट इज विजिबल टू एवरीबॉडी. Is Yes. visible? Okay. Now, Yes, sir. in this program, we are creating a class and object of the class. This is the basic example of a class and object program. We are using run online compiler to execute our C++ program. This is, everybody know about the include IO stream header file. This is the name of the class, my class. My class is the name of
class and this is the symbol of the class. If you want to create a my class, then this is the syntax: class, the name of the class, curly bracket open. Now this is the public. We will see later in this class what about the public. This is basically, it is called the access specifier, which show the types of the data and the function or method of the class. Yeah, what types of access specifier we declare for a data type or for a method. Basically, access specifier is used in data encapsulation and data abstraction. So हम यहाँ पर नहीं, हम यहाँ पर सिर्फ देखेंगे कि एक प्रोग्राम है, क्लास कैसे बनाते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं. तो दिस इज द सिंबल. वी आर डिक्लेयरिंग टू वेरिएबल, वन इज द इंटीजर टाइप एंड अनदर इज द स्ट्रिंग टाइप. So these are two variables defined in the class and both are the public. And right, we are closing the class. क्लास को क्लोज करने के लिए कर्ली ब्रैकेट के बाद सेमी कॉलम लगाना इज द मस्ट टू क्लोज अ क्लास. एक क्लास को क्लोज करना है तो जो ओपन ब्रैकेट का जब हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे तो उसके साथ हमें सेमी कॉलम लगाना मस्ट है. नाउ कम टू द दिस. I think it is more clearly. Integer main. This is the main function. My class, this is the name of the class and this is the name of the object of my class. Now we are creating the my obj object of my class. इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं. And if we want to access the member functions of a class through object, we need a special operator that is called the dot operator. With the help of dot operator, we can access the member functions of the class, whatever the variables or the function. तो जब भी हमें इस क्लास के जो मेंबर फंक्शन है उनको एक्सेस करना है तो हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. वो ऑब्जेक्ट इस डॉट ऑपरेटर की हेल्प से इन मेंबर फंक्शन का कॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. तो नाउ किस तरीके से, माई ओपीजी डॉट माई नेम. ये देखिए माई नेम इज इक्वल टू 15. मैंने वैल्यू डिफाइन करी इस वेरिएबल की. माई ओबीजी डॉट माई स्ट्रिंग, माई नेम इज रोनी, मैंने एक स्ट्रिंग दी एंड मैंने इन दोनों को प्रिंट करा लिया. ठीक है ना. नाउ लुक एट दिस. 15 and my name is Ronnie. So this is the object and class example. I think it is clear and I think कोई डाउट भी यहाँ पर नहीं होगा किसी को. Yes. हेलो सर. Yes. सर क्लास को हम लोग एक तरह का फंक्शन बोल सकते हैं? नहीं, क्लास फंक्शन का हमेशा ये ध्यान रखिएगा. फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं, स्मॉल ब्रैकेट होते हैं इस नाम के पहले, स्मॉल ब्रैकेट. ठीक है ना. फंक्शन आइडेंटिफिकेशन का सबसे अच्छा तरीका है कि फंक्शन किसको बोलेंगे, जिसके साथ में ये दो स्मॉल ब्रैकेट हों. ठीक है, वो फंक्शन है. इज दैट क्लियर? इसके अलावा और कोई फंक्शन नहीं. और जब हमको क्लास को कॉल करना होगा तो हम ऑब्जेक्ट से ही कॉल कर सकते हैं उसको? जी बिल्कुल, ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के मेंबर फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं. एंड सर आपने ऊपर पब्लिक लिखा है, तो अगर वो प्राइवेट होता फिर कॉल नहीं कर पाते? अभी मैंने क्या बोला, हम लेटर इस क्लास के बाद में हम ये एक्सेस स्पेसिफायर जब पढ़ेंगे ना, देन वी विल सी द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, है ना. तो हम बताएंगे ना इनके बारे में अभी. ठीक है ना. अभी सिर्फ आपको क्लास कैसे क्रिएट करते हैं और एक ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम सिर्फ वो बता रहे हैं पहले एग्जांपल में. ठीक है ना. वन बाय वन हम सारी चीजें क्लियर करते जाएंगे. Yes sir. Okay. Now come to the next program. Look at this. Next program is showing
write a program to create multiple object of one class. तो अभी तक हमने देखा कि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था. नाउ वी आर लुकिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास. So this is a simple program to create a class of car. So this is the syntax of a class car. Here we are defining three variables. One is the integer type and two is the string type variable we have declared in class car. This is the main function, integer main, and this is the car obj. This is the one object we have created. This is the car obj2. This is the second, and so we can define the multiple like this. Look at this. के पहले चलिए इसको रन करके देखें. First we run this program and okay, something is wrong. Look at this. Just a minute. Fatal error, array, do program, just a minute. Look at this, BMW and the Ford. तो जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे उसके अकाउंट्स में मैंने इसको चेक करवाया कि मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसने बोला कि दिस इज द BMW मॉडल देर एंड द ईयर देर, नाउ प्रिंट करो. तो हमने प्रिंट करवाया बहुत आसानी से कि कार है, सी आउट कार ऑब्जेक्ट ब्रांड मॉडल एंड ईयर. ये प्रिंटिंग है. ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उस ऑब्जेक्ट से मैंने तीन चीजें वैल्यू दी और उनको प्रिंट करवा लिया. वी कैन डिफाइन हियर, वी कैन क्रिएट मोर देन वन ऑब्जेक्ट हियर लाइक दिस. ओजे कुछ भी लिख दो आप, के एल, दिस इज व्हाट, दीज आर द ऑब्जेक्ट. नाम कुछ भी दे सकते हो आप ऑब्जेक्ट का, एक साथ आप डिफाइन कर सकते हो. अगर सपोज जैसे आपने के नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है तो डेफिनेटली इसको वापस से कॉपी करिए और देखिए कि क्या के नाम का ऑब्जेक्ट मेरा प्रिंट कर रहा है या सही कर रहा है जो मैंने डिफाइन किया है. तो मैंने देखिए यहाँ पर मैं इस कार ऑब्जेक्ट की जगह क्या कर दूं, के कर देता हूँ. ठीक है, इस कार ऑब्जेक्ट की जगह मैंने के कर दिया है और इस कार ऑब्जेक्ट की जगह मैंने के कर दिया है. ठीक है, BMW की जगह X Y Z मैंने लिखा है. ठीक है, अब मैं इस के को प्रिंट करवा लेता हूँ. लुक एट दिस, पूरा देख लीजिए. तीन आपका प्रिंट होगा, कंट्रोल ऑफ सी, कंट्रोल ऑफ बी. इस कार ऑब्जेक्ट की जगह मैं क्या करना चाह रहा हूँ, के को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ. इस कार ऑब्जेक्ट की जगह के, एंड नाउ लुक एट दिस, इस कार ऑब्जेक्ट की जगह के डॉट, अच्छा ये नहीं आया, चलो कौन सा था, ईयर, YEAR ईयर, और ये रहा. मैंने इसको किया कंप्लीट एंड नाउ रन द प्रोग्राम. मैंने क्या किया, कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट किए यहीं पर, मल्टीपल ऑब्जेक्ट, एंड नाउ वी आर रनिंग द प्रोग्राम. लुक एट दिस, क्या हो रहा है. कहाँ गया K1.ER, प्रिंट है, K1 कार ऑब्जेक्ट है. सर आपने K1.ER लिख दिया, वहाँ पे एरर आ रहा है कहाँ पर लास्ट लाइन में. हाँ? सर लास्ट लाइन में आपने जहाँ पे सी आउट करवाया है ना, K1.ER लिख दिया. ये सर वहाँ K1, ओके. दैट इज दिस, XYZ आगे हमारा मतलब सही है कि हम एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं, सॉरी क्रिएट कर सकते हैं कहीं पर भी. जैसे कि अगर हमें डिफाइन करना है तो कार, उस क्लास का नाम, और ये ऑब्जेक्ट है हमारे. तो आप ऑब्जेक्ट के नाम कुछ भी हो सकते हैं,
ऑब्जेक्ट क्लास के मेंबर को कॉल कर सकता है इस डॉट ऑपरेटर की हेल्प से। ठीक है, तो आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। नाउ कम टू द अनदर प्रोग्राम। Look, write a program for inside class method। ठीक है, अब अभी तक हमने सिर्फ क्या देखा था कि हम वेरिएबल्स के साथ वर्क कर रहे थे। एक क्लास बनाई मैंने और एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया और उन वेरिएबल को मैंने एक्सेस किया। वेरिएबल दैट मींस एट्रीब्यूट। नाउ इन दिस प्रोग्राम वी आर क्रिएटिंग अ मेथड और फंक्शंस इनसाइड द क्लास। तो क्लास मैंने बनाई है माई क्लास नाम की, मैंने एक मेथड क्रिएट करी है माई मेथड नाम की। ये माई मेथड इज द फंक्शंस ऑफ माई क्लास। ठीक है, ये मैंने क्या किया है यहाँ पर, ये मैंने पूरा बोला है कि ये माई मेथड नाम की जो क्लास है उसकी बॉडी भी मैंने यहीं पर डिफाइन कर दी। मतलब मैंने डिक्लेयर नहीं किया, मैंने डिफाइन कर दिया माई मेथड को कि माई मेथड अगर कॉल होगी, ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या प्रिंट होगा, हेलो वर्ड प्रिंट होगा। ठीक है ना। अब वही है कि इस माई मेथड को कॉल करने के लिए हमें मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा माई क्लास का। So now once we create object of my class and with the help of dot operator we can access the member function of the class. So now right now my method is the member function of the class and it is called by the dot operator and object. So once it is run, it will show hello world in the output screen. Is that clear? ला तो देखिए कैसे एक मेथड हमने बनाई और उस मेथड को कैसे कॉल किया। तो एक क्लास क्रिएट हुई, क्लास में मेथड और मेथड को कॉल करना। नाउ कम टू द अनदर प्रोग्राम कि अगर ये तो सर बोल दिया कि आपने क्लास के अंदर ही आपने मेथड को वो कर दिया, डिफाइन कर दिया। मैं चाहता हूं कि क्लास के बाहर मेथड को मैं डिफाइन करूं, तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास के बाहर में मेथड को, तो राइट ए प्रोग्राम फॉर आउटसाइड क्लास मेथड। अगर क्लास के बाहर हमने मेथड को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, क्लास के जो फंक्शन है क्लास का, उसको उसकी बॉडी को कैसे डिफाइन करते हैं आउटसाइड ऑफ द क्लास। इनसाइड ऑफ द क्लास सीधा फंक्शन जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं, लेकिन आउटसाइड ऑफ द क्लास अगर हमें करना है तो व्हाट इज द वे to define the class outside of the class। तो now look at this, the same program my method है, यहाँ पर मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया है, एक क्लास क्रिएट करी है मैंने my class नाम की, उसमें एक पब्लिकली मैंने एक मेथड क्रिएट करी है, ये देखिए डिक्लेयर किया है फंक्शन को my method। क्लास क्लोज हुई है, सेमीकोलन से। अब उस क्लास जो एक my method है उसको यहाँ पर मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो डिफाइन करने के लिए void my class रिटर्न टाइप ये फंक्शन है, उस रिटर्न टाइप कैसा था, void का था। तो देखिए void हमने लगाया हुआ है the name of the class। अगर मैं जो मेथड होती हैं, जो फंक्शन होते हैं, अगर मैं आउटसाइड ऑफ द क्लास कर रहा हूं, आउटसाइड ऑफ द क्लास में कर रहा हूं, तो मेरे को ये ऑपरेटर दैट इज कॉल्ड द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, इस ऑपरेटर की हेल्प लेनी पड़ती है। इफ वी आर डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन आउटसाइड ऑफ द क्लास, देन वी नीड अ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। With the help of this operator, we can define member function outside of the class. And what is the way to define the class outside of the class? This is like आप देख लीजिए my class, scope resolution operator and my method. And this is what will, सब कुछ सेम था, सिर्फ my method को मैंने outside of the class लिया। Previous example. Look at this. Once we run this program, it will show the hello world on the output screen.
Yes, what happened? Compiler is not connecting, I think due to the net problems. But when the program will run, it will show hello world on the screen. I think इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है? Now we will continue with the next program. Compiler उस मोड में आ चुका है, हो जाएगा, कोई ना. Write a program to add parameter in a class. How we can add parameter in the class? तो look at this, ये प्रोग्राम है हमारा. एक पैरामीटर अब हमें ऐड करना है. We are declaring a class car. Member functions of class car is the speed, and we are defining one variable, जैसे maximum speed. Types of this is integer, and this function का टाइप कैसा है? integer टाइप है. तो ये एक क्लास मैंने क्या करा है? डिफाइन करी है इंटीजर टाइप की. फंक्शन इंटीजर टाइप का है और उसमें एक पैरामीटर पास किया है और उस पैरामीटर का टाइप कैसा है? इंटीजर. आउटसाइड ऑफ द क्लास जब मैं गया डिफाइन करने के लिए, तो ये स्पीड किस टाइप का था? इंटीजर टाइप का. तो मैंने उसका टाइप लिखा कार क्लास. स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से मैंने इस स्पीड नाम के फंक्शन को डिफाइन किया. रिटर्न क्या किया? मैक्सिमम स्पीड, इंटीजर मैक्सिमम स्पीड, और रिटर्न में क्या करा रहा हूं? वही इंटीजर वैल्यू को मैंने रिटर्न में करा लिया है. अब जब मैं स्पीड नाम के फंक्शन को कॉल करूंगा मेन फंक्शन में विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, देन वी विल पास द स्पीड और इंटीजर वैल्यू. लुक एट दिस, सी आउट माई ओबीजी डॉट स्पीड. जैसे ही मैंने माई ओबीजी डॉट स्पीड ना वैल्यू पास करी 200, ठीक है ना? तो जब प्रोग्राम रन होगा तो इट विल शो द स्पीड ऑफ द, कि ये आपको स्पीड शो करवाएगा सी आउट में, क्योंकि ये सी आउट है, मैक्सिमम स्पीड है. स्पीड कॉल्ड हुआ तो स्पीड ये क्लास हमारी कॉल होगी, मतलब लाइक दिस, और इसके बाद ये कॉल होगा और यहाँ से रिटर्न होगा हमारा. दैट इज कॉल्ड द वैल्यू. कि हम एक क्लास में पैरामीटर भी पास करके क्लास के मेंबर फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. आई थिंक ये क्यों नहीं हुआ भाई? आई थिंक कंपाइलर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है आज रन टाइम पर, इसलिए एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है. इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये पैरामीटर पास करते हुए था हमारा कि एक मेथड में कैसे पैरामीटर हम पास करते हैं और हम किस तरीके से कॉल करते हैं. तो आई थिंक यहाँ तक अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा, और अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आप बिल्कुल एट ए टाइम पूछ सकते हैं, कोई भी अगर डाउट आता है आपको. नाउ लुक एट दिस, नाउ कम टू द आवर ओरिजिनल स्लाइड, दैट इज दिस, जो मैं देख रहा था कि अभी मैंने आपको कुछ, सॉरी, look at this, my PPT like this. So I think this is the example, and this we have already seen the how we can create a class and object. Class and object क्या होता है, ठीक है ना? Now come to the member access specifier. What is the member access specifier? आपके बीच में से एक क्वेश्चन आया था कि सर ये पब्लिक लिखा है, प्राइवेट लिखा है, प्रोटेक्टेड लिखा है, तो what is this? तो member access specifier, class can limit the access to their member function and the data. This is the choice of the class. If you want to if class don't want to share the member functions of the class, then he can define private.
if a class want to share member functions of the class to all, then we can define its public. And with the some restriction, we want to a class want to share the member function with some restriction, then we can define as a protected. So basically, member specifier, member access specifier are the three type: public, private, and protected. Public, that means everybody can access the member functions of the class. Private, only the accessible only the member functions of the class, and protected similar to the private. और डिस्कस जब हम हायरार्की पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि प्रोटेक्टेड किस तरीके से होता है। अब अगर ये मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर को अगर समझने की बात करें कि सर कैसे ये है, तो आप देखिए कि आपका घर, अगर आप अपने घर को एक क्लास की तरह ट्रीट करें, एक क्लास की तरह ट्रीट करें, ठीक है, आप अपने बेडरूम को एक क्लास की तरह ट्रीट करें, तो उसको कौन एक्सेस कर पाएगा आपके घर को? तो जो घर के मेंबर हैं, केवल वही घर के अंदर जो सामान है उनको एक्सेस कर पाएगा। इसके बाद घर के अंदर जो सामान है उनको एक्सेस करने के लिए आपने कुछ लोगों को परमिशन दे के रखी, जैसे आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव हैं, तो वो एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन क्या कोई बाहरी व्यक्ति घर के आपके सामान को एक्सेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, जो कि आपने रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा है। लेकिन आप बोलते हैं कि भाई पोर्च में कोई भी आ सकता है लेकिन अंदर कोई नहीं आ सकता, तो पोर्च को आपने पब्लिकली डिफाइन कर दिया। तो बेसिकली जो क्लास हम क्रिएट करेंगे उसके मेंबर फंक्शन को आउटसाइड ऑफ द क्लास के कौन कौन लोग एक्सेस कर सकते हैं वो बताने का काम होता है मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर का। बेसिकली इट इज डायरेक्ट रिलेटेड विद द encapsulation and abstraction which is hide the information और wrap the information, ठीक है ना। कि जब हम डेटा एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को फुलफिल करने जाते हैं तब हमें ये एक्सेस स्पेसिफायर की जरूरत पड़ती है। अगर मैंने पब्लिकली कर दिया है मेंबर फंक्शन को, तो आउटसाइड ऑफ द क्लास जो भी होगा वो सभी लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने मेंबर फंक्शन प्राइवेट बनाए हैं तो जो क्लास के मेंबर हैं केवल वही उस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। और अगर प्रोटेक्टेड बनाए हैं मैंने तो सिर्फ क्लास की एक सब क्लास जो होगी वही उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। सब क्लास के बाद डेटा कोई भी दूसरा अदर क्लास एक्सेस नहीं कर सकती है। तो दिस इज द एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक प्राइवेट। नाउ कंट्रोलिंग पब्लिक प्रेजेंट क्लाइंट एंड विद अ व्यू ऑफ द सर्विस क्लास बता ही चुका हूं आपको कि पब्लिक और प्राइवेट हैं तो कैसे है। इफ यू वांट टू शेयर द प्राइवेट डेटा आउटसाइड ऑफ द क्लास देन वी हैव अ फ्रेंड फंक्शन। आप लोगों ने सुना होगा नाम C++ में। डेटा ओनली एक्सेसिबल टू द मेंबर फंक्शन एंड द फ्रेंड फंक्शन इफ डेटा इज डिफाइंड एज द प्राइवेट। If data is publicly, then everybody can access. Private member only accessible through the public class interface using public member function. हम आगे देखेंगे कि कैसे हम एक प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं, पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं। ये सारे हम एग्जांपल 1 by 1 कंप्लीट करेंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा सा बेसिक थ्योरी देख रहे हैं। नाउ वी विल कंटिन्यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक थ्रू द प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट एज ए डेटा टाइप। बेसिकली इट्स कम फ्रॉम द C++14, ठीक है ना। सी की जो अलग अलग वर्जन आ रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट एज ए डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट को एज ए डेटा टाइप काउंट किया गया है। मतलब ऑब्जेक्ट इन C++ इज ए रीजन ऑफ द स्टोरेज दैट हैज साइज, अलाइनमेंट रिक्वायरमेंट, स्टोरेज ड्यूरेशन, लाइफ टाइम वैल्यूज एंड ऑप्शनली अ नेम। मतलब अभी तक मैंने बोला कि क्लास में एक वेरिएबल डिक्लेयर करो तो वेरिएबल का टाइप हम बताते थे। अब हम यहाँ बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट इटसेल्फ एज ए डेटा टाइप। ऑब्जेक्ट भी एक डेटा टाइप है, उसको साइज होगा, वो अपना साइज, अपना नाम, स्टोरेज ड्यूरेशन, ये सारी चीजें डिफाइन कर सकते हैं। हम ऑब्जेक्ट को काउंट कर सकते हैं एज ए डेटा टाइप को।
An object has a type. That means the term object type refer to the type with which the object is created. Some objects are polymorphic. The implementation generate information associated with each such object that make it possible to determine the object type during the program execution. To understand this concept, I will show a program जहां पर कि ऑब्जेक्ट को एज ए डेटा टाइप रखा गया है। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब हमें पता पड़ता है कि भाई इट इज अ डेटा टाइप विच कैन स्टोर द वैल्यूज ऑल्सो। ओके, तो कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर की क्लास जो है हम